Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं विच एडिशन ऑफ मित्रा शक्ति वॉज कंडक्टेड इन पुणे। मित्रा शक्ति क्या है? ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। अभी इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन है ये पूछा जा रहा है, तो 9th एडिशन इस एक्सरसाइज का भी हमने ऑब्जर्व किया। लोकेशन क्या रहेगी? पुणे में, महाराष्ट्र, इंडिया। ठीक है, एंड 9वां एडिशन था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। 14 डे लॉन्ग ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी एंड 29 नवंबर को ये एक्सरसाइज कंक्लूड की जाएगी। एंड इसी में अगर हम बात करें कि किन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो याद रखेंगे मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इसके 120 पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और श्रीलंका आर्मी की तरफ से 53rd इन्फेंट्री डिवीजन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया के 15 इंडियन एयरफोर्स मेंबर्स ने एंड श्रीलंका के 5 श्रीलंकन एयरफोर्स मेंबर्स ने यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। ठीक है, मित्रा शक्ति की बात करें तो मित्रा शक्ति पहली बार 2012 में स्टार्ट की गई थी एक्सरसाइज, एंड इसका जो 8th एडिशन था लास्ट ईयर वो 2021 में हुआ था। एंड इस एक्सरसाइज को हुआ कहाँ था? 8वां एडिशन जो हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था। फिर इसी के अलावा अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे जरा बताओ इंडिया की रैंक क्या रहेगी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया की रैंक आ जाती है 52nd। यहीं पर अगर मैं बात करूं क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक रहेगी क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में? तो इंडिया ने टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है इन दिस क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ अभी किस स्टेट गवर्नमेंट या कौन सी स्टेट गवर्नमेंट 50,000 रुपये देगी टू द डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी डॉटर्स को 50,000 रुपये प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा किस स्टेट के द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। इनके द्वारा अभी अप्रूव किया गया डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ 2 SJVN जो कि है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो अरुणाचल प्रदेश में है। एक रहेगा आपका 3097 मेगावाट का जिसका नाम है इटैलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। दूसरा है आपका 680 मेगावाट का जिसका नाम रहेगा अतुनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ पर रहेंगे? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में रहेंगे, करेक्ट। और इनकी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी अप्रूवल मिल गया है किससे? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। ठीक है,
मार्क करके चलेंगे। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं ये 40,000 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले ये आपके प्रोजेक्ट रहेंगे। करेक्ट, इनमें 40,000 वर्थ के ये प्रोजेक्ट हैं आपके। फिर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की अगर हम बात करें SJVN की, तो यहाँ पर जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? नंदलाल शर्मा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। एंड 1988 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने विड्रॉ किया फ्रॉम द ट्रीटी ऑन कन्वेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप? ये एक ट्रीटी थी कि आपका जो यूरोप का रीजन है ना, यहां पर हमारे जो वेपन है, कन्वेंशनल जो वेपन का डिप्लॉयमेंट होगा वो नहीं होगा, राइट। और ये साइन किया गया था, इसका रीजन था कि जो USA एंड रशिया, अब रशिया है, पहले क्या था? USSR, इनके बीच में जो वॉर चल रही थी, जो कोल्ड वॉर है, राइट, वो ना बढ़ सके और इसको रोक लगाने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। इसको CFE के नाम से भी जाते हैं, कन्वेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। तो इस ट्रीटी से अभी किस कंट्री ने विड्रॉ कर लिया? तो वो है रशिया, राइट। रशिया ने इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया। अगर इसमें ट्रीटी की बात करूं, 1990 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था, पेरिस फ्रांस में साइन किया था, राइट। और 23 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने इसमें साइन किया था, दोज बिलोंगिंग टू नेटो एंड वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के द्वारा, नेटो के एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एम क्या था इस ट्रीटी का? बेसिकली कि जो USA एंड रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही है उसको कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने के लिए, राइट। एंड इसका एम क्या था कि जो यूरोप में वेपन की डिप्लॉयमेंट होगी, कन्वेंशनल वेपन की, वो नहीं हो सकती है। लेकिन अब रशिया ने इससे विड्रॉ कर लिया। रीजन बीइंग क्योंकि नेटो काफी ज्यादा एक्सपेंशन कर रहा था और रशिया की जो यूक्रेन से वॉर भी चल रही है ना, वो भी इसका रीजन यही है कि जो नेटो है वो एक्सपेंशन कर रहा था और उनकी जो रशिया के बॉर्डर्स को वहां पर वो सेफ फील नहीं कर रहे थे, एंड इसी की वजह से ये वॉर भी स्टार्ट हुई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल गोल्ड लोन फॉर हैसल फ्री क्रेडिट एक्सेस? तो डिजिटल गोल्ड लोन बेसिकली क्या है? जो आपके पास गोल्ड है आप उसको यहां पर किस बैंक के पास रखवा दो, एक बैंक का है जो का नाम है PNB, पंजाब नेशनल बैंक के पास आप उसे रखवा सकते हैं, और उस गोल्ड, आपकी ज्वेलरी होगी, आपके गोल्ड कॉइन होंगे, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा एट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये जो लोन रहेगा ना आपको दो लोगों को मिलेगा, एक तो आपको पर्सनल लोन लेना हो या फिर दूसरा आपका एग्रीकल्चर के लिए, राइट। आई रिपीट, लोन होगा आपका एग्रीकल्चर के लिए या फिर ये पर्सनल यूज के लिए आपका लोन रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी लॉन्च की। दो फैसिलिटी हैं इसमें भी हम देखें, एक तो है ये नहीं आगे है, ये है आपका PNB गोल्ड लोन, ये है आपका रिटेल के लिए, और दूसरा है PNB स्वर्णिम, ये आपका एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि रिटेल एंड एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए यहां पर गोल्ड लोन की फैसिलिटी लॉन्च की गई है। किस बैंक के द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, करेक्ट। ये जो स्कीम फिर यहां पर आप देख सकते हैं, ये ऑफर करेगी लोन रेंजिंग फ्रॉम 25,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन टू सपोर्ट पर्सनल नीड्स एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ठीक है, किसके द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम यहीं पे बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वो है अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। 1894 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और टैगलाइन रहेगी द नेम यू कैन बैंक अपॉन। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, नेक्स्ट आ जाता है RBI बार्स बैंक बजाज फाइनेंस लैंडिंग अंडर ई-कॉम एंड इंस्टा EMI कार्ड। मतलब RBI ने बैन लगा दिया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर, ताकि ये जो लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स जो होते हैं, ये अब आगे नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि इन्होंने जो गाइडलाइंस थी बैंक RBI की उनके साथ कंप्लाई नहीं किया, एंड जो डाटा प्रोवाइड कराना चाहिए था वो टाइमली बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने वो डाटा प्रोवाइड नहीं कराया। इसीलिए RBI ने बजाज फाइनेंस पे जो लैंडिंग होती थी अंडर ई-कॉम एंड इंस्टा EMI प्रोडक्ट्स, उस पर बैन लगा दिया है। ठीक है, उस पर बैन लगा दिया है, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं, the reason behind this action is non-adherence of digital lending guidelines of RBI by this company, especially not providing any key fact statements to borrowers for two of the lending products. Additionally, जो बजाज फाइनेंस है दे रेक्टिफाई करेंगे की फैक्ट स्टेटमेंट्स फॉर ई-कॉम एंड इंस्टा EMI कार्ड। एंड इस बैन से क्या होगा, अगर लोन ये आगे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो लोन नहीं करेंगे तो जो उस लोन पे वो इंटरेस्ट अर्न करते थे, जो उनका प्रॉफिट होता था, वो भी नहीं हो पाएगा। एंड लोन देने से ये क्या होता था, इनका जो AUM होता था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी, एंड जो इनकी जो प्रॉफिट होगा उसमें भी यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। इवन अगर आपको याद हो, ध्यान दिया हो आपने, तो कल परसों जो आपका कल बेसिकली जो
बैंक के स्टॉक्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। रीज़न बीइंग कि आरबीआई ने जो हम पर्सनल लोन्स प्रोवाइड कराती हैं, जो भी बैंक, जो भी आपके एनबीएफसीज जो भी पर्सनल लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा टाइटनिंग कर दी है। रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत ईजी हो गया था, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए थे, इतने सारी एप्लीकेशंस आ गई थी, वो जिससे बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था किसी के लिए भी लोन ले पाना। एंड कई बार क्या होता है कि आप लोन ले तो लेते हैं, लेकिन उस लोन लेने के बाद आप उसको चुका नहीं पाते, बिकॉज इट बिकम्स वेरी ईजी। आप जस्ट एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड आपको उससे पैसे अवेलेबल हो जाएंगे, और वो आपके 30-30, 40-40% इंटरेस्ट पर आपको वो पैसा अवेलेबल होता है, लोन मिलता है। तो ऐसे लोनों पे टाइटनिंग लाने के लिए ये किया गया, और जो पहले उसके लिए अमाउंट रखना पड़ता था 100% होता था, उसको बढ़ा के अब 125% यहां पर आपका अमाउंट बैंक के पास होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी ने अभी एक एमओयू साइन किया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, ताकि जो एमएसएमईज है ना उनको सपोर्ट किया जा सके। वो जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहते हैं दूसरे देश से, ताकि जो हमारी जो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैं उनमें बढ़ावा आ सके, इसके लिए यहां पर सिडबी ने एमओयू साइन किया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, ताकि इन एमएसएमईज को यहां पर बढ़ावा मिल सके, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑनर किया सिंगर सुरेश वाडकर को विद गन सम्रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड। इसी अवार्ड को सिर्फ लता मंगेशकर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट रहेगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सिंगर सुरेश वाडकर को, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको सम्मानित किया गया गन सम्रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड से, ठीक है। अगर इनकी यहाँ पे बात की जाए, इन्हीं को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2010 में फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। इन्हीं को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2018 में। 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, राइट। ये हैं सिंगर सुरेश वाडकर जी, ठीक है। मार्क करके चलेंगे। और ये जो आपका लता मंगेशकर अवार्ड है, आप तक आप समझ गए होंगे ये दिया किस लिए जाता है, जो एक्सेप्शनल सिंगर होते हैं, राइट, उनको यहाँ पे ऑनर किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ लता मंगेशकर अवार्ड। और ये लता मंगेशकर अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। यहाँ पर 5 लाख रुपए, एक आपका सर्टिफिकेट एंड एक मोमेंटो से भी यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। जिनको भी इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है इस लता मंगेशकर अवार्ड से, या फिर गन सम्रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है अभी गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने 2 अवार्ड्स जीते हैं, राइट, एट द एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2023 में। अगर इनकी अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एशिया पावर मैगजीन इन्होंने प्रेजेंट किया 19th एडिशन ऑफ एशिया पावर अवार्ड्स, राइट, 3rd एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स, एंड इन्होंने इनॉग्रल एशियन वाटर अवार्ड्स को भी सम्मानित किया गया। तो 3 तरह के ये अवार्ड्स इन कुआलालंपुर मलेशिया में दिए गए। इसी के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे जैसे हमने देखा 2 अवार्ड्स इनको सम्मानित किया गया। पहला था इनोवेशन अवार्ड इंडिया फॉर रिडक्शन इन एलएनजी शिपिंग कॉस्ट एंड एमिशंस। एलएनजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, राइट। इससे क्या था, शिप टू शिप ट्रांसफर किया गया लिक्विफाइड नेचुरल गैस को विद बैक हॉलिंग। इससे आपका जो शिपिंग कॉस्ट थी एलएनजी की एंड एमिशन है उसमें रिडक्शन देखने को मिला, इसलिए इनको इनोवेशन अवार्ड इंडिया से सम्मानित किया गया, पहला अवार्ड। दूसरा अवार्ड आ जाता है मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया। इसके लिए इनको सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने एक पहला फ्लोटिंग कंप्रेस नेचुरल गैस स्टेशन को सेटअप किया गया, जो कहां पर था, वाराणसी में इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इन 2 अवार्ड्स को भी सम्मानित किया गया, किसको, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कौन से अवार्ड है, इनोवेशन अवार्ड जो कि आपका था शिप टू शिप ट्रांसफर ऑफ एलएनजी, एंड दूसरा है मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि है पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहां पर, वाराणसी यूपी में सेटअप करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है फिर इंडिया की बीना अग्रवाल एंड मैक्सिको के डेविड बार्किन, इन दोनों को अभी केनेथ बोल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड रहता है आपका केनेथ बोल्डिंग अवार्ड, ये रिकॉग्नाइज करता है किसी भी इंडिविजुअल को जो कि एक्सेप्शनल क्वालिटीज लाता है टू प्रिजर्व द विजडम। जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड एजुकेटर थे केनेथ बोल्डिंग, उनकी जो विजडम थी, उन्होंने जो आईएसई होती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इकोनॉमिकल इकोनॉमीज, इससे रिलेटेड जो इकोनॉमीज के ऊपर इकोलॉजिकल इकोनॉमीज में एक्सप्लोर करते हैं, सोशल जेंडर इक्वालिटी, राइट, उनके जो रोल्स होते हैं सोसाइटीज में, डेवलपिंग नेशंस में जो इनके रोल होते हैं उनको प्रिजर्व करने का जो काम करता है, उनको ये सम्मानित किया जाता है। उनको सम्मानित किया जाता है यहाँ पर केनेथ बोल्डर अवार्ड से। तो केनेथ बोल्डिंग अवार्ड को से किनको सम्मानित किया गया, इंडिया की बीना अग्रवाल एंड मैक्सिको के डेविड बार्किन। अगर बात करें बीना अग्रवाल की, तो बीना अग्रवाल अभी एक पद्मश्री अवार्डी हैं, ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, राइट,
एंड ये अभी कहाँ पर प्रोफेसर हैं? एट द प्रोफेसर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमीज एंड इन्वायरमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके में। और इन्हीं के साथ साथ डेविड बार्किन जो मैक्सिको के हैं, ये प्रोफेसर हैं एट द मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी इन मैक्सिको। एंड इन दोनों को यहाँ पे इस केनेथ बोल्डिंग अवार्ड का जॉइंट रेसिपिडेंट यहाँ पे घोषित करा गया। अगर बात करें बीना अग्रवाल, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2008 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी WHO ने लॉन्च किया कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन 2024 से 2026 टू एनहेंस ग्लोबल सोशल कनेक्शन। देखो अभी आप न्यूज़ में भी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी देख रहे होगे, एक पोस्ट आ रही है कि WHO के द्वारा नोटिफाई किया गया जो लोनलीनेस होती है ना, अकेलापन, दैट इज इक्वल टू स्मोकिंग ऑफ 13 सिगरेट्स अ डे। 13 सिगरेट स्मोक करने के बराबर होता है लोनलीनेस, अकेलापन। क्योंकि अकेलापन आदमी को बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है, काफ़ी चीज़ें थॉट्स होते हैं, ओवर थिंकिंग होने लगती है, एंड जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये लोनलीनेस बढ़ती जाती है। तो इसको एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेने के लिए, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए एक 11 मेंबर की लीडिंग पॉलिसी मेकर्स, जिसमें आपके लीडिंग पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स होंगे, एडवोकेट्स होंगे, वो यहाँ पर इस कमेटी के मेंबर रहेंगे, इस कमीशन के मेंबर रहेंगे, जो कि है कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन। 3 साल के लिए कमीशन बनी है 2024 से 2026 तक। 3 साल तक यहाँ पर लोनलीनेस के ऊपर यहाँ पे हम रिसर्च करेंगे कि क्या इंपैक्ट करता है लोनलीनेस को, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, क्या क्या सोशल रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा बेबस हो जाते हैं और इतने ज़्यादा हमारी बॉडी इफेक्ट होती है, जो कि 13 सिगरेट स्मोक करने के बराबर होता है। करेक्ट। ये जो कमीशन है इसको चेयर किया जाएगा डॉक्टर विवेक मूर्ति के द्वारा, जो कि सर्जन जनरल हैं ऑफ USA। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इनको, ये इंपॉर्टेंट है। कमीशन के मेंबर पूछा जा सकता है डॉक्टर विवेक मूर्ति। फिर पूछा जा सकता है कब से कब तक है, 2024 से 2026, क्योंकि 3 साल के लिए है। 11 मेंबर की ये कमीशन रहेगी, कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन। किसके द्वारा सेटअप किया गया? WHO के द्वारा इसको सेटअप किया गया। नेक्स्ट है सोशलिस्ट लीडर पेड्रो सैंचेज। इनको रिसेंटली रिइलेक्ट कर लिया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। सो पेड्रो सैंचेज ये रिइलेक्ट किए गए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। ये इनका सेकंड टर्म रहेगा। राइट, मार्क करके चलेंगे। अगर मैं बात करूं स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन में कौन सी करेंसी यूज की जाती है? तो यूरो यूज की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ वो पहले इंडियन बैंकर कौन बने जिन्होंने वर्ल्ड की 8th हाईएस्ट पीक पे क्लाइम किया, जो कि है माउंट मनासलू। वो है सुनील कुमार। ठीक है, फिर एक आ जाता है ऑफिसर डेस्क सिस्टम। ऑफिसर डेस्क सिस्टम, ये ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया गया टू एक्सपेडिएट सेक्रेटरिएट वर्क, और किस स्टेट के द्वारा? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेवी की 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट का, जिसका नाम है आमिनी। ये आमिनी याद रखेंगे, आमिनी एक आइलैंड है जो काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहते हैं जिसकी इन लक्षद्वीप। राइट, उसके बेसिस पे ये आमिनी, इस शिप का यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ये रहेगा। इसको बनाया कहाँ पे, किसके द्वारा गया? राइट, और बनाया किस फैसिलिटी के द्वारा गया, और लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया एट अ शिप बिल्डिंग फैसिलिटी जो कि L&T की है इन चेन्नई तमिलनाडु। इसको बनाया गया है GRSE के द्वारा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, द लॉन्च सेरेमनी वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय वाइस एडमिरल संदीप नथानी, जो कि चीफ ऑफ मटेरियल है ऑफ इंडियन और चीफ ऑफ मार्शल एट इंडियन नेवी। ठीक है, तो मार्क करके चलेंगे इसको, GRSE के द्वारा डेवलप किया गया। अगर GRSE की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? कमांडर रिटायर्ड PR हरी। एंड हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, यहां पे आप देख सकते हैं ये जो आमिनी है ये अर्नाला क्लास शिप रहेगा। आमिनी आइलैंड जो कि लक्षद्वीप पे है, उसकी काफी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, उसके नेम के बिहाफ पे इसकी नेमिंग की गई है। राइट, एंड ये 77 मीटर शिप है विद अ 900 टन डिस्प्लेसमेंट, कैपेबल ऑफ रीचिंग अ स्पीड ऑफ 25 नॉट्स एंड कवरिंग 1800 नॉटिकल माइल्स। मूविंग ऑन, ऑब्यूटरी पर आते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ नागालैंड PB आचार्य जी। इनका रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं मणिपुर के, इनके पास एडिशनल चार्ज था ऑफ असम के गवर्नर, मणिपुर के गवर्नर, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर एंड त्रिपुरा के गवर्नर।
राइट। एंड ये मणिपुर के गवर्नर थे 2014 से 19। वेटर्न बीजेपी लीडर भी रह चुके हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 92 एंड उडुपी कर्नाटका में इनका 1931 में जन्म हुआ था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स पर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के द्वारा एक बुक रिलीज की गई जिसका नाम रहेगा बिल्डिंग पार्टनरशिप। बुक का पूरा नाम बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, राइट। इस बुक को ऑथर किया गया कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा, राइट। तो किस बुक के किन के द्वारा ऑथर किया गया? कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा। और इस बुक को कब रिलीज किया गया? ड्यूरिंग इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, जो कि मानेकशा सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ था। ये 3 दिन लंबा आपका एक रीजनल स्ट्रेटेजिक डायलॉग था। एंड इसी के दौरान निर्मला सीतारमन ने एक एडिटेड वॉल्यूम भी इसका रिलीज किया जो है मैरीटाइम पर्सपेक्टिव, मैरीटाइम सिक्योरिटी डायनामिक्स इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेंड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसके द्वारा ऑथर की गई ये बुक? कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा रिलीज की गई, जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल एपिलेप्सी डे। नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। एपिलेप्सी एक आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें आपके सीजर्स आ जाते हैं एंड इससे जो हमारे इंडिविजुअल जिसको आपको एपिलेप्सी है उसकी फैमिली, उसके कम्युनिटी में, उसके सोशल में जो लोग हैं उन पे जो इफेक्ट पड़ता है इससे, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई और 17 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल एपिलेप्सी। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। 17 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे टू सेलिब्रेट मल्टीकल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड टीम वर्क अमंग स्टूडेंट्स। इसका एम रहेगा दैट एवरी किड इन द वर्ल्ड हैज एक्सेस टू एजुकेशन, हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। एंड जो आपकी ये जो ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस मार्क्स द एनिवर्सरी of the events held after Nazi invasions of Charles University in Prague, Czech Republic in 1939। और 17 नवंबर 2023 को हमने 83rd एडिशन ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे का। तो मेन एम क्या है कि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच सके एंड इसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया गया। पहली बार 1941 में ऑब्जर्व किया गया और हम देख सकते हैं इस बार 2023 में 83rd एडिशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे का हमने ऑब्जर्व किया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। मित्रा शक्ति हमने देखा 9वां एडिशन है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, पुणे में हुई। और 9वां एडिशन, 8वां एडिशन इंडिया में, वो श्रीलंका में हुआ था। देन सीईए ने अप्रूव किया डीपीआरएस ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ 2 एसजेवीएन प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में वर्थ 40,000 करोड़ रुपीज, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स रहेंगे। देन रशिया ने विड्रॉ किया फ्रॉम द ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। आरबीआई बार्स बजाज फाइनेंस, राइट, आरबीआई बार्स बजाज फाइनेंस लैंडिंग अंडर ईकॉम एंड इंस्टा ईएमआई, ये फर्दर लोन्स अभी आगे नहीं दे पाएंगे, करेक्ट। देन पीएनबी ने इंट्रोड्यूस किया डिजिटल गोल्ड लोन फॉर हैसल फ्री क्रेडिट एक्सेस। सिडबी ने साइन किया एमओयू विद टीडीबी टू सपोर्ट एमएसएमईज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑनर किया सिंगर सुरेश वदकार को विद गनसम्रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड 2023। एशियन पावर मैगजीन यहाँ पे गेल ने बैक किया 2 अवार्ड्स एट द एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2023। इंडियाज बीना अग्रवाल एंड मैक्सिको की डेविड बार्किन, इन्होंने जीता 2023 का केनेथ बोल्डिंग अवार्ड। डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन 2024 से 2026 टू एनहेंस ग्लोबल सोशल कनेक्शन। सोशलिस्ट लीडर पेड्रो सैंचेज को रिलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। इंडियन नेवी का 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट एमिनी, इसको लॉन्च किया गया। एमिनी एक आइलैंड है लक्षद्वीप में, उसके नेमिंग के बिहाफ पे ये नेम किया गया है इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट का। देन फॉर्मर नागालैंड के गवर्नर पीबी आचार्य जी, इनका निधन हो गया। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा एक नई बुक रिलीज की गई जिसका टाइटल रहेगा बिल्डिंग पार्टनरशिप। एंड नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे भी 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये तो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है ये जनजातीय गौरव दिवस? तो याद रखेंगे महाराजा झारखंड में इसको ऑब्जर्व किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस को, करेक्ट। एंड ये अभी क्यों प्रेवलेंट है, अभी हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन की विजिट पे थे टू झारखंड, जो कि है 15 से लेके 16 नवंबर तक। एंड यहाँ पर ये इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन एन इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया था खुंटी झारखंड में, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे 15 नवंबर को जो 15 नवंबर होता है, ये फाउंडेशन डे भी होता है, फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड, ठीक। तो 2 चीज याद हो गई, जनजातीय गौरव दिवस कहां पर? झारखंड में। एंड 15 नवंबर को हम फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड ऑब्जर्व करते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए यहाँ पे 7200 करोड़ रुपए के।
करेक्ट। ये जो आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे रेल, रोड, एजुकेशन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स में रहेंगे। इसी के साथ साथ पीएम मोदी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा एंड पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को भी लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ जो थर्ड जनजातीय गौरव दिवस के दौरान जो 15वीं इंस्टॉलमेंट थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, वो भी यहाँ पे लॉन्च की गई, रिलीज की गई। ठीक। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, सीपी राधाकृष्णन गवर्नर रहेंगे, रांची कैपिटल रहेगी झारखंड की। करेक्ट। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, बेतला नेशनल पार्क। अगर इसके अलावा आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल जरा बताओ इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी कौन सी बन गई है? वो है आपकी अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है विद 8.4 गीगावाट ऑफ जनरेशन। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ उस पोर्ट का नाम बताओ जो कि 16.1 मिलियन टन्स गुड्स को, कार्गो को यहाँ पे हैंडल करता है। और ये इंडिया का पहला पोर्ट बना है जो कि 16.1 मिलियन टन्स कार्गो को हैंडल कर रहा है। तो पोर्ट का नाम क्या रहेगा? मुद्रा पोर्ट। ठीक। फिर भारत आटा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था एक, भारत आटा। ये भारत आटा इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर के लिए, राइट। अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर आटा, गेहूं का आटा प्रोवाइड कराने के लिए एट अ अफोर्डेबल रेट, ये भारत आटा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन इंडियन एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीट को-चेयर्ड? तो याद रखेंगे हम बात कर रहे हैं पहली ऑस्ट्रेलियन इंडियन AIESC, ऑल ऑस्ट्रेलियन इंडियन एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीट। ये पहली मीट थी इंडिया की तरफ से। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी ये यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, इनके द्वारा। एंड जेसन क्लैर ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। इन दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई थी, पहली ऑस्ट्रेलियन इंडियन एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीट। करेक्ट। ये मीट हुई कहाँ पर थी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो IIT गांधीनगर गुजरात में हमारी मीट हुई थी, 6 नवंबर को हुई थी 2023 में। एंड यहाँ पर हमारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर हो सके, नॉलेज शेयर हो सके, डाटा शेयर हो सके, रिसर्च शेयर हो सके। करेक्ट। एंड कॉर्पोरेशन एक दूसरी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बना रहे, इसीलिए ये अभी मीट हुई, ऑस्ट्रेलियन इंडियन एजुकेशन स्किल काउंसिल मीट। फिर यहीं पे याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया में 2 यूनिवर्सिटीज़ खोल रहा है, 2 यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस खोल रहा है। हम जानते हैं पहली यूनिवर्सिटी जो आ रही थी ऑस्ट्रेलिया में, फॉरेन यूनिवर्सिटी, वो क्या थी? डेकिन यूनिवर्सिटी। अब एक और यूनिवर्सिटी आ रही है, वो है वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी। और ये दोनों कहाँ पर होंगी? ये गांधीनगर जिफ्ट सिटी में इनको खोला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कैनबरा यहाँ की कैपिटल रहेगी और करेंसी रहेगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कलिंगा लिटरेसी फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ था? अभी भुवनेश्वर में हुआ। और कौन सा एडिशन था? तो इसका 10वां एडिशन ऑब्जर्व किया गया था कलिंगा लिटरेसी फेस्टिवल का। देन इसी के साथ साथ यहाँ पर याद रखेंगे, अभी हमने देखा 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, एक तो है वोलोंगोंग एंड डेकिन यूनिवर्सिटी, ये दोनों अपना कैंपस खोलेंगी कहाँ पर? जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। एंड इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड एनिमल हेल्थ, इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई अभी, 33rd कॉन्फ्रेंस रहेगी। ये वर्ल्ड एनिमल हेल्थ की 33rd कॉन्फ्रेंस थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है। फिर वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करने वाली पहली स्टेट इंडिया में कौन सी बन गई है? वो है झारखंड। राइट। झारखंड वो पहली स्टेट बन गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे एक गुरुकुल इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज रहेगी गुरुकुल की, जिसका एम रहेगा जो हमारे इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको नेविगेट करना एंड डिफेंस इकोसिस्टम को बनाना बिटवीन इंडिया एंड USA। करेक्ट। तो जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे एजुकेशनल स्टार्टअप्स हैं या फिर नॉट एजुकेशनल, जो हमारे इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए फ्रॉम बोथ द साइड्स इसको लॉन्च किया गया था, गुरुकुल इनिशिएटिव को। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमीज एंड सर्विसेज और इंडिया की दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ ताकि इन दोनों के बीच में जो एकेडमिक अलायंस है वो उसको बढ़ाया जा सके, जो कोलैबोरेशन है इन दोनों के बीच में उसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, जो फैकल्टीज़ हैं उनका एक्सचेंज हो सके, जो स्टूडेंट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स को एक्सचेंज करा जा सके, ताकि एक दूसरे के कल्चर को हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकें। बच्चे अगर दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे सीखेंगे कैसे काम होता है, कैसे वहाँ का वर्क कल्चर है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। और एक दूसरे के साथ जाएंगे तो कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, राइट। सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये बच्चों के लिए। इसीलिए समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज जो कि उज्बेकिस्तान की है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में है, दिल्ली में, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। हम बात कर रहे हैं 37th नेशनल गेम्स की। कहाँ पर हुए थे? गोवा में हुए थे, राइट। हो चुके हैं ये एंड ये आपके 26 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक ये गेम्स चले। मेडल टैली में टॉप किस स्टेट ने किया? महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया, 228 मेडल्स के साथ यहाँ पे टॉप किया, जिसमें से 80 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 79 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। और यहीं पे महाराष्ट्र ने राजा भालांद्रा सिंह ट्रॉफी को भी जीत लिया है। करेक्ट। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का सेकंड पोजीशन, हरियाणा थर्ड, मध्य प्रदेश थर्ड, फोर्थ एंड केरला आपके फिफ्थ पोजीशन पे आया। यहीं पे अगर मैं बात करूं बेस्ट मेल एथलीट की, वो कौन रहे? वो है श्रीहरि नटराज। करेक्ट। ये कहाँ से हैं? कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कौन से स्पोर्ट खेलते हैं ये स्विमिंग से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 10 मेडल यहाँ पर जीते। यहीं पे बेस्ट फीमेल एथलीट की अगर मैं बात करूं, वो कौन रहेंगी? वो है जिम्नास्ट, जो है संयुक्ता प्रासेन काली, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, जिम्नास्ट है, ठीक है। और इन्हीं के साथ एक और नाम याद रखेंगे, प्राणति नायक। ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी 5 मेडल जीते हैं और इन दोनों ने 5-5 मेडल जीते इन स्पोर्ट्स। और याद रखेंगे दोनों जिम्नास्ट हैं एंड दोनों ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता और ये दोनों बेस्ट फीमेल एथलीट रहेंगी यहाँ की। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, झारखंड वाज फॉर्म्ड एज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? और इसी के साथ साथ बताओ फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम झारखंड का। नेक्स्ट, किस कंट्री ने भी होस्ट किया APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन लीडर्स मीटिंग 2023 को? तीसरा, विच इंडियन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। इसमें एक चौथा और ऐड कर लो। आपको बताना है वीमेन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित करने के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया। तो ये 4 होमवर्क क्वेश्चंस हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ बच्चे यहाँ पे कमेंट करें। जो भी वीडियो देख रहा है उनका कमेंट मेरे को यहाँ पे चाहिए, राइट। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.